Hello and very welcome to my YouTube channel. Today's topic is on University Education Commission in 1948 to 49, and it was the first education commission which was introduced after independent India. As I say before, it was the first education commission after independence, and it was appointed at 14th November 1948 by the government of India. And the chairman of this commission was Dr. S. Radhakrishnan, and this commission submitted his report in 1949. And this commission largely and prominently emphasize on modern higher education in India. As you are seeing in this slide, in this slide, first man is showing Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the chairman, and he was a Spalding Professor of Eastern Religion and Ethics at Oxford University. Next member was Dr. Tarachand. He was the Secretary and Educational Advisor to the Government of India. Sir James F. Duff was the Vice Chancellor of the University of Durham, UK. Zakir Hussain. Next one is Dr. Zakir Hussain. He was the renowned educationist from Jamia Millia Islamia. Next is Dr. Arthur E. Morgan, former president of Antioch College and chairman to the Tennessee Valley Authority. Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, he was the Vice Chancellor of the University of Madras. Next is Dr. Meghnad Saha. He was the Professor of Physics, University of Calcutta. And next member was the Dr. Karm Narayan Behel, Professor of Geology, University of Lucknow. Dr. John J. Tigert, former U.S. Commissioner of Education and President Emeritus of the University of Florida. And last one, Shri Nirmal Kumar Siddhanta. He was the Member Secretary and Professor of English, University of Lucknow. इस कमीशन ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए, और ये जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे इंडियन यूनिवर्सिटीज और जो इम्प्रूवमेंट, इनके जो सजेशंस थे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, जो इन्होंने बोला कि हम जो प्रेजेंट कंडीशन है या पास्ट में हम जो थे या प्रेजेंट कंडीशन अभी जो है और फ्यूचर में हम अपने कंट्री को कहाँ देखते हैं हायर एजुकेशन में, उन सभी चीज़ों को, तीनों एस्पेक्ट, तीनों फेजेस को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने सजेशंस दिए थे. जो सजेशंस थे, इन्होंने जो उस समय कंटेम्प्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटी की जो शॉर्टकमिंग्स इन्होंने फाइंड आउट की, उसके आधार पे इन्होंने कुछ सजेशंस दिए. पहला सजेशन था इनका about their administration and finances. Next is administration and finance of college affiliated to them. Restructure of higher education. Raise the teaching standard of higher education. Determine the aims of higher education. Opinion regarding medium of higher education. Next is the appointment, pay scale and service condition of the teacher of higher education. Next is to find solution to check the widespread indiscipline among the students. And last is to present plans for the welfare of the students. ये इन्होंने कुछ सजेशंस के एरिया डिसाइड किए थे. सजेशंस की बात करते हैं, जो इन्होंने सजेशंस दिए, सजेशन और रिकमेंडेशन जो दी गई थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा. पहले जो रिकमेंडेशन थी वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की थी. तो इसमें इन्होंने पहला पॉइंट दिया था कि हायर एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की. ये कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कमिटी शुड बी फॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन एवरी यूनिवर्सिटी, और देयर राइट एंड ड्यूटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड. जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का, उसमें रेगुलर बेसिस पे कमेटी निर्धारित होंगी, फॉर्म्ड होंगी, और उनकी ड्यूटीज भी, राइट और ड्यूटी क्लियरली डिफाइंड होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं
शुड बी ऑन देयर मैनेजमेंट कमेटी, जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी देखेगी। फाइनेंशियल बर्डन है, जो भी हायर एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन है वो जॉइंटली बॉर्न किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रांट दी जाएगी ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को अगर वो चाहते हैं कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराना है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन सब के लिए ग्रांट दी जाएगी। इन्होंने एक और जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के नाम को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब किया गया और वो किसका रिकमेंडेशन था, तो हाँ, वो रिकमेंडेशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 का, जिसने सजेशन दिया था कि हमें हायर एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और सभी यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म रूप से कार्य करें, इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की जगह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाना चाहिए, जो पूरे देश के विश्वविद्यालयों और एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए पर एक समान ध्यान दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन कैटेगराइज की जाए 3 कैटेगरी में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च। ग्रेजुएशन फॉर 3 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर 2 ईयर एंड रिसर्च मिनिमम 2 ईयर। और इन्होंने हायर एजुकेशन को, जो आप देख रहे हैं, हायर एजुकेशन को इन्होंने ग्रुप किया 3 कैटेगरी में, आर्ट, साइंस और टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट कहा कि सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन किए जाएं, आर्ट, साइंस, वोकेशनल, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट हो यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट बोला कि इंडिपेंडेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएं, किसके लिए? एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड टीचर एजुकेशन, इन सभी जो फील्ड हैं इनके लिए सेपरेट कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएं। फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च वर्क सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, क्योंकि इन्होंने इस पॉइंट को ध्यान में रखा कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो उसके आधार पर इन्होंने रिसर्च वर्क एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की भी बात की और रिसर्च वर्क की भी बात की है। आगे हम देखेंगे तो इन्होंने ICAR की भी बात की है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरिया, कि हम वहाँ पे बेहतर रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि हमें काफ़ी फील्ड एरिया मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। तो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक कॉलेजेस और जो भी इस्टेब्लिश करने की बात की, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की, वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश करने की बात की। अब आपने आर्ट, साइंस एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट के इनका क्लासिफिकेशन देखा हुआ है। इन्होंने बोला कि जो हमारा वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो हम 6 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 6 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो हम 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में इन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को। फर्स्ट था इसमें एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज कॉमर्स, नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, देन मेडिकल, लॉ एंड टीचर ट्रेनिंग, इनकी बात की। नेक्स्ट है इनका कि जो एम्स ऑफ हायर एजुकेशन हो, तो इसके लिए इन्होंने एक होलास्टिक फेज के रूप में उसको देखा है, होलास्टिक सर्कल के रूप में। सबसे पहला इनका प्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड फ्यूचर लीडर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट था इनका मेंटेन एक्सीलेंस इन जनरल, प्रोफेशनल, वोकेशनल एजुकेशन while providing opportunities for diverse learning. Third point is promote intellectual growth in terms of through critical thinking, research, innovation, original ideas. Next is preserve and enrich India's culture and civilization and spiritual heritage. कैसे हम preserve करेंगे, enrich करेंगे, तो इन्होंने बोला कि while fostering wisdom and holistic development के through हम preserve करेंगे कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इन स्टिल मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, इन्होंने बोला कि एंड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंटेग्रिटी। अब इन्होंने जो एम्स दिए उसके आधार पे कैसे हम कैसे पर्सन को प्रोड्यूस करेंगे जो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली इंटेलेक्चुअल है, who
provide leadership, who provide leadership in the field of politics, administration, business, industry, and commerce, and who far-sighted, intelligent, mentally and superior, and contribute to social reforms. करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन, जब अब हायर एजुकेशन के लिए ना करिकुलम भी निर्धारित करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हम 3 साल का करिकुलम निर्धारित करेंगे, और ये 3 साल का जो करिकुलम होगा वो ड्यूरेशन ओनली फॉर 12th पास स्टूडेंट्स ही ग्रेजुएशन में एडमिट होंगे, और स्टूडेंट्स अपने नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, नीड एंड इंटरेस्ट, एंड जनरल एंड रिलीजियस एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी at UG level in every stream. No hesitation for that the science students could not study about the general and religious education. It is mandatory to all streams, art, science, and vocational education. All three stream students should study about the general and religious education. It should be compulsory at UG level. Next one is the education of English and national language Hindi should be compulsory at UG level. Next is the vocational and technical category curriculum should be made on region specific requirement and remain should be same. PG courses for 2 years for ordinary graduates, and नेक्स्ट इन्होंने बोला कि पीजी कोर्सेज शुड बी फॉर 2 years फॉर ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स एंड 1 year फॉर दोज हु पास्ड ऑनर कोर्सेज। मीन्स कि अगर किसी ने 3 साल का ऑनर्स कोर्स किया है तो उसके लिए पीजी ओनली फॉर 1 year। द पीजी एडमिशन शुड बी ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया के बेसिस पे आपको पीजी एडमिशन मिलेगा। देयर शुड बी इन डेप्थ स्टडी of any one subject at PG level, and training and research method should compulsory in it. Next is a minimum of 2 years should be compulsory for the research work, and those who want to take admission in research who have passed PG at least in second division, means आपको second division में at least pass करना है आपको अपना PG कोर्स, और जो इसके बाद भी आपका एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया बेसिस पे एडमिशन मिलेगा रिसर्च वर्क। तो ये था इनका एक करिकुलम हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। जो मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन है शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज एंड इट शुड अरेंज इमीडिएटली इन सम आर्ट कैटेगरी। मीन्स की जो रीजनल लैंग्वेजेस में है वो अभी आर्ट कैटेगरी में लागू की जाए, उनमें शिक्षा दी जाए, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट हैं, वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इट्स नॉट पॉसिबल इन फेडरल लैंग्वेजेस, देयरफॉर इट में कंटिन्यू इन इंग्लिश, की वो इंग्लिश में कंटिन्यू किया जाए। और जितने भी नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है वर्ड्स की वो एक्सेप्ट की जाए, और फेडरल लैंग्वेजेस शुड बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इन्होंने सजेशन था इनका टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो टीचिंग यानी कि क्वालिटी की बात की गई है ना, टीचिंग स्टैंडर्ड इन्होंने कुछ मतलब फॉर्म करने की बात की। तो इन्होंने फर्स्ट बोला कि द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस शुड बी इम्प्रूव्ड एंड द लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इन दैम। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन इन यूजी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इज 12th पास। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी यूनिवर्सिटी में वो 12th पास होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी शुड बी 3000 एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस इट शुड बी 1500। Next is the working days. They are talking about the working days. The working days in university and colleges should be at least for 180 days and excluding for examination days. It was suggest that the examination days was excluded from the 180 days. Next is attendance should be compulsory for UG level. Tutorial system should be implemented at the graduation level. Seminar should be organized at PG level. एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शुड बी रिफॉर्म, एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म की बात की, एंड इट शुड बी ऑन रियल नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इन्होंने सजेशन दिया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स के लिए। देयर शुड बी 4 कैटेगरीज ऑफ टीचर्स। इन्होंने 4 कैटेगरी की बात की है, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, रीडर, देन प्रोफेसर एंड प्रोफेसर।
देयर प्रमोशन शुड बी स्कॉलास्टिक एबिलिटी के बेस पे, टीचिंग एबिलिटी, रिसर्च वर्क, इनके बेस पे इन्हें प्रमोशन दिया जाए. The pay scale of teachers, the commission grouped the university teacher into 5 categories and fixed higher salaries for them. उनके लिए एक हायर सैलरी फिक्स कर दी जाए और 5 कैटेगरी में यूनिवर्सिटी टीचर्स को बांटा है. कॉलेज टीचर्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है और वो 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट इज प्रिंसिपल और नेक्स्ट इज लेक्चरर. एंड द फिक्स द स्केल एंड सजेस्ट द न्यू पे स्केल. Next is study leave should be given to the university and college teachers, maximum of 1 year at a time and 3 years during the entire service period. And their age for retirement should be 60 years, but in case if the person is in good health, it may be increased to 64 years. तो इन्होंने अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे 64 साल तक इंक्रीज किया जाता है, उसकी रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया जा सकता है. वर्कलोड ऑफ टीचर्स शुड बी 18 पीरियड पर वीक. आपको 18 पीरियड लेने हैं. और जो अकोमोडेशन की इन्होंने बात की तो लो रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए जो भी नियर यूनिवर्सिटीज है. नेक्स्ट इनका सजेशन था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड वेलफेयर. First point is an advisory board of student welfare should be organized in every university to prepare and implement to the student welfare programs. Next point is dean of students should be appointed in every university, one each for boys and girls, and they will be responsible for look after the problems of students. Next is in every university director of education should be appointed for organization of physical education, games and sports के लिए इन्होंने डायरेक्टर नियुक्त करने की बात की है एवरी यूनिवर्सिटी में. नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी. फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी फॉर यूजी क्लासेस स्टूडेंट्स फॉर 2 years. नेक्स्ट इज एनसीसी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज. हेल्थ सेंटर्स की बात की, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन था इनका. हेल्थ सेंटर्स शुड बी अरेंज्ड इन every university to look after the health and for the treatment of common disease of student, and student health checkup should be conducted at the time of the admission and also once a year subsequently. Next is subsidized midday meal. तो midday meal कितना पॉपुलर है प्राइमरी एजुकेशन में, इन्होंने हायर एजुकेशन में सजेशन दिया था कि subsidized midday meal should be arranged in the university and colleges. Next is students union should be formed in university and colleges, and students should be educated in self governance through group activities. Student welfare should be keep away from politics. Next is proctorial board should be formed in the university and colleges, and students should be treated in administrative work. Next is opportunities of social work provide in rural area of students, provide hostel with good hygienic foods should be arranged in the university and colleges, and scholarship should be arranged for poor students. नेक्स्ट पॉइंट है हायर वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन. इस हायर वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन जो इन्होंने 6 एरियाज में बांटे थे, अब उसके बारे में बात करते हैं. जिसमें से पहला इनका था एग्रीकल्चर एजुकेशन. एग्रीकल्चर एजुकेशन को इन्होंने यूजी शुड बी फॉर 3 year एंड 4 year इफ हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड. अगर उसमें हस्बेंड्री इंक्लूडेड है तो 4 साल का आपका यूजी होगा एग्रीकल्चर में. न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज शुड बी ओपनड इन रूरल एरिया. PG program should be offered only in universities. Central and state government should establish experimental farms for research, and ICAR should coordinate research work among all agricultural research centers. ICAR, Indian Council for Agriculture Research. तो इन्होंने ये सजेशन दी एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में. नेक्स्ट है इनका कॉमर्स एजुकेशन. कॉमर्स एजुकेशन में इन्होंने बोला कि सेपरेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए कॉमर्स के लिए, जिसमें सब्जेक्ट हो इनके बैंकिंग, अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस. नेक्स्ट है पीजी स्टडी शुड बी कंडक्टेड ओनली इन यूनिवर्सिटीज. एडमिशन टू पीजी शुड बी गिवन टू कॉमर्स ग्रेजुएट्स विद स्पेशल एबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल एजुकेशन में इन्होंने बोला कि यूजी जो होगा वो 3 year का होगा मेडिकल में. मेडिकल यूजी कोर्सेज शुड बी ऑफ 3 year with 14 to 15 months इंटर्नशिप फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. यानी कि 12 to 15 months की इंटर्नशिप होगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ. 3 साल का यूजी होगा आपका.
तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए 4 साल का MBBS डिग्री। नेक्स्ट इन्होंने बोला बेसिक नॉलेज हो एंशियंट आयुर्वेदा का, इसको इंक्लूड किया जाए करिकुलम में। नेक्स्ट इज मेडिकल कॉलेजेस शुड अपॉइंट वेल क्वालिफाइड टीचर, college must have well equipped laboratories and necessary apparatus. Every medical college should have an attached hospital with enough patient exposure. Next, PG should be available only in higher level medical colleges. ये इनका मेडिकल एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन एंड सजेशंस थे। लॉ एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि UG लॉ कोर्स शुड बी 3 year. The 3rd year should focus on practical training. Seminar, theoretical study, moot courts should be part of training. PG curriculum should include constitution, international administration, jurisprudence and Hindu and Muslim laws. Next is research should be encouraged according to student interest. तो ये इसका इनके बारे में था लॉ, एग्रीकल्चर एजुकेशन, कॉमर्स, मेडिकल एंड लॉ एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट जो एक 5th इनका सब्जेक्ट था उसमें कैटेगरी थी टीचर एजुकेशन बारे में। तो इन्होंने कहा कि ओपन किए जाए टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज, यानी कि देखा जाए तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके बारे में, जिस विषय में इस पेपर को हम पढ़ रहे हैं, तो वो उस डिपार्टमेंट को जो ओपन करने की बात की थी इन्होंने रिकमेंड किया था कि ओपन किया जाए टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज एंड इस्टेब्लिश ट्रेनिंग कॉलेज भी इस्टेब्लिश किए जाएं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि गिव प्रेफरेंस टू एक्सपीरियंस्ड बट अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर्स फॉर एडमिशन, यानी कि ऐसे इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए जो अनट्रेन्ड है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाए एडमिशन में। एंड टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंटेन एन इक्वल बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन टीचर एजुकेशन। तो इन्होंने एक तो पहले इन्होंने टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ओपन करने की बात की यूनिवर्सिटीज में और इस्टेब्लिश करने की बात की ट्रेनिंग कॉलेजेस, और प्रेफरेंस की बात देखा जाए एडमिशन में प्रेफरेंस हो तो ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड है लेकिन अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर्स हैं उन्हें एडमिशन देने में प्रेफरेंस दिया जाए, और मेंटेन किया जाए इक्वल बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो इन्होंने दोनों को प्रेफरेंस देने की बात की है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इनका इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि ट्रीट एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज एज नेशनल एसेट एंड मेंटेन देम प्रॉपरली, इनको मेंटेन किया जाए क्योंकि ये नेशनल एसेट्स है। नेक्स्ट इज एफिलिएशन एंड कंट्रोल शुड लाई विद यूनिवर्सिटीज एंड करिकुलम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, करिकुलम डिफाइंड हो। नेक्स्ट मेक इंजीनियरिंग डिग्री 5 year की हो इंजीनियरिंग डिग्री इन ड्यूरेशन एंड एडमिट ओनली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट टू PG प्रोग्राम में से वही स्टूडेंट जाए जो एडमिट है और कमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका हायर रूरल एजुकेशन एंड रूरल यूनिवर्सिटीज। इन्होंने बोला कि फॉर्म एन ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल एट द सेंटर टू मेक एंड ओवरसी रूल्स फॉर रूरल एजुकेशन। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रूरल यूनिवर्सिटीज इन रूरल एरियाज विद फिक्स्ड jurisdiction, rural colleges limited to 300 students and rural universities to 2500 students. Appoint separate teachers for each institution and give equal weight 50-50 to theoretical and practical work. नेक्स्ट सजेशन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इन्होंने बोला कि रिफॉर्म ऐसे ओनली एग्जाम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड क्रिएट एन एग्जामिनेशन बोर्ड इन एवरी यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी में एक एग्जामिनेशन बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाए और धीरे धीरे रिफॉर्म किया जाए ऐसे ओनली एग्जाम्स के स्थान पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। नेक्स्ट होल्ड UG PG एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूड थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट इज अपॉइंट एग्जामिनर्स विद एटलीस्ट 5 year, यानी जिन्हें 5 साल का अनुभव है उन्हें ही एग्जामिनर बनाया जाए, और टीचिंग एक्सपीरियंस जिन्हें 3 साल का है उन्हें एग्जामिनर अपॉइंट किया जाए। और जो इन्होंने डिवीजन की बात की है तो अवार्ड डिवीजन इन्होंने फर्स्ट क्लास के लिए 70% जिसका है या प्लस 70% या 70% से ज़्यादा है उन्हें फर्स्ट क्लास, सेकंड उसे दिया जाए जिसका 55% to 69% है वो सेकंड क्लास, और थर्ड क्लास जिसका 40% to 54% है उसे थर्ड क्लास में रखा जाए। तो इस तरीके से ये हमारे इन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में सजेशन एंड रिफॉर्म्स
रिकमेंडेशन दिया है। वुमेन एजुकेशन की बात करें तो इनका मेन एम था कि ये गुड मदर हो, वाइफ, हाउस वाइफ बने। इसके लिए इन्होंने होम मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और न्यूट्रिशन के करिकुलम की बात की है। को एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की है हायर एजुकेशन में, और इन्होंने एम्फेसाइज किया प्रैक्टिकल डोमेस्टिक स्किल्स अलॉन्ग साइड जनरल एजुकेशन टू इम्प्रूव हाउस होल्ड वेलफेयर। रिलीजियस और मोरल एजुकेशन में देखें तो इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और यूजी लेवल पे विद सेपरेट एज अप्रोप्रिएट करिकुलर डिसाइड करने की बात की है। बिगिन ईच स्कूल डे विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ साइलेंट प्रेयर और मेडिटेशन हो सभी इंस्टीट्यूशन में। और अगर टीच बायोग्राफीज ऑफ मेजर रिलीजियस लीडर्स जैसे बुद्धा, कन्फ्यूशियस, जोरास्टर, सोक्रेटिस, जीसस, शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य, कबीर, गुरु नानक, गांधी, इनके बारे में जो बायोग्राफीज हैं वो मॉर्निंग प्रेयर्स में यूजी लेवल पे दिया जाए, और सेकेंड ईयर में कवर किया जाए शॉर्ट कंपैरेटिव पोर्शंस ऑफ ईच रिलीजन। इन थर्ड ईयर देखा जाए तो इन थर्ड ईयर द मेन फिलोसफिकल प्रॉब्लम एंड डीपर रिलीजियस थॉट के बारे में चर्चा की जाए। तो ये कि मॉर्निंग जो असेंबलीज होती हैं स्कूल्स में, उसमें भी इन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए भी जो प्रेयर्स, जो साइलेंट प्रेयर और मेडिटेशन के साथ साथ डिसाइड कर दिया था कि इतना इतना आपको हायर एजुकेशन में इंक्लूड करना है। थैंक यू। आई होप सो आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में जितने भी पॉइंट्स, जो रिकमेंडेशन, सजेशन बताए गए, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। होपफुली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मोर लेक्चर्स के लिए आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर एजुकेशन में किस पॉइंट पे चाहिए या कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।